Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, students, to our next discussion. And we'll start from the place where we left previously. We were discussing the leadership styles, in which we discussed four types of leadership styles. And then finally, we saw theory X and Y by Douglas McGregor, and then we did that what type of leadership style is the best style. And after the discussion, we concluded that there is no such style which can be called as the best leadership style for all types of organizations. All it depends is the requirement of the organization, other factors like training and experience of the workforce, and the amount of time available for the decision making, and how influential are the leaders are. All these factors help to form the leadership style. And as we said, in some organizations, the autocratic style is the best style. In some other organizations, the democratic style is the best style. And in some organizations, the paternalistic style, and in others is the laissez-faire style. And most of the time, in the research-based organizations, the laissez-faire style is very successful. So moving on, today we discuss informal leadership. First of all, we'll have to see what is an informal leader. So a person who has no formal authority but has the respect of colleagues, and naturally for that respect he has some power on them, that is termed as informal leader. Means he is not a manager, he is not a director, he is not a supervisor, but amongst the workforce, he is a person who, because of some better influence, some better experiences, he has the respect for all the workforce around him, and therefore he becomes an informal leader. So these informal leaders are the people who basically have the ability to lead the other people, to influence the other people to get the work done, and they don't have any formal power. So they use their special knowledge, they use their experiences to influence other people. Now, this is a basically tricky situation for the managers, as they can't exclude the employee, the influential employee, the informal leader, right? As his or their opinion carries weight with the rest of the staff, right? So they cannot exclude them. And they have to take the opinion of that person or persons, if there are more than one, in their opinions, in their decisions making. And it becomes very difficult for the management to work alongside the informal leader. But they have to manage the situation, because these informal leaders are very influential, and they can be they can create a problematic situation for the management as well. So they have to work with the informal leaders to ensure that the business is on the right track and the business aims are met. Naturally, these are very crucial. So in an ideal business situation, where workers and employees work together in a trusting relationship, managers should attempt to work with the informal leaders. It is very important to achieve the aims of the organization. If they are not working alongside those informal leaders, so there would be a mix of the aims and objectives, and the actual business aims
will not be met, and that create a problem for the business as well. So this is how the example of informal leader can be can we have from the school as well. In a class, if a student is influential, he becomes informal leader. You have a monitor or the class representative, but that monitor or the class representative has a formal authority, means he becomes an elected person, a monitor or a class representative, which is elected by the class. So he becomes a formal leader. But amongst your class, you have a person who has respect from all the people and who is very influential as well. हर कोई उसकी बात सुनता है, उसकी बात मानता है. ठीक है, अगर उसने कह दिया कि भाई आज हमने बाहर जाना है तो उसकी बात मानी जाएगी. अगर वो कह देगा आज क्लास नहीं पढ़नी तो उसकी बात मानी जाएगी. तो he becomes an informal leader, despite the fact that we have the monitor and the class representatives in the class as well. तो ये इस तरह से इनफॉर्मल लीडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पाए जाते हैं, जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनकी ओपिनियंस बड़ी वेट कैरी करती हैं, और जो मैनेजमेंट है वो उनकी ओपिनियन के बगैर नहीं चल पाती, बिकॉज दैट मे क्रिएट अ chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में. तो इसलिए इनफॉर्मल लीडरशिप भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद आ जाता है चेंज लीडरशिप. चेंज लीडरशिप को हम बड़ी तफसील से A2 में पढ़ेंगे. अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि ये क्या चीज है. इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी चेंज को मैनेज करना और चेंज को लीड करना. आपको ये अंदाजा है कि चेंज के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और कहा यह जाता है कि देयर इज ओनली वन परमानेंट थिंग एंड दैट इज चेंज. चेंज हर लम्हे, हर वक्त, हर जगह पे आ रही है. बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है. जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया कि बिजनेस पहले तो बड़े लोकल पैमाने पे चलते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुए, आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द सिटीज गए, सिटीज से प्रोमिसेस से कंट्रीज तो मूव कर देगी. ये ऑल द चेंज है. अब रिसेंट चेंज को देखें तो अब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन की तरफ चला गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, कि हर कोई इंटरेक्शन कर रहा है थ्रू इंटरनेट, और इवन आपकी जो टीचिंग्स हैं वो भी थ्रू इंटरनेट हो रहे हैं, या लाइव क्लासरूम्स आ गए हैं, जो कि पहले कभी थे, मौजूद तो थे, लेकिन कभी इस पे गौर नहीं किया गया था, कभी सोचा नहीं गया था. शायद इसी मौके के लिए उन लोगों ने डेवलप किए हुए थे. तो जब ये इस तरह की आई मुसीबत, तो व्हाट हैपेंड, ऑल दोज शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट. तो अब क्या हो रहा है, बिजनेसेस ले लें या कुछ भी ले लें आप, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेनिंग्स भी इवन ऑनलाइन हो रही हैं. तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है. तो अब जब बहुत ही ज्यादा डायनामिक सिचुएशन है, यानी बहुत तेजी से सोशल चेंजेस आ रही हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, तो बिजनेस को भी उनके साथ चलना पड़ेगा. उस फास्ट पेस्ड चेंजेस के साथ अगर वो अपने आप में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा तो वो बिजनेस पीछे रह जाएगा और वो कंपेटिटिव नहीं रहेगा, और उसके जो कंपटीशन है वो आगे निकल जाएगा. सो मॉडर्न बिजनेसेस हैव टू अडेप्ट एंड बी फ्लेक्सिबल टू सर्वाइव. अगर वो अडेप्ट नहीं करते, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. सो देयर आर प्रॉब्लम्स नेचुरली इन लीडिंग चेंज दैट स्टेम मेनली फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो हमने जैसे पहले कहा कि एक ही ऐसा रिसोर्स है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसकी बेसिस पे हम आप आजकल के ज़माने में कंपैटिटिव एडवांटेज लेते हैं और उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, वो ह्यूमन रिसोर्स ही है. बाकी हर चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं. कोई मशीनरी है, अगर एक के पास है तो वही मशीन दूसरा भी खरीद सकता है. कोई असेंबलिंग लाइन है तो वो अगर एक ने परचेज की है वही असेंबली लाइन दूसरा भी परचेज कर सकता है. अगर कोई कंप्यूटर ऑटोमेटेड सिस्टम एक ने परचेज किया है तो वो दूसरा भी परचेज कर सकता है. लेकिन एक शख्स जो मेरे पास काम कर रहा है वही शख्स दूसरे के पास काम नहीं कर सकता अनलेस कि वो छोड़ के उधर चला जाए, तो उसको कॉपी भी नहीं किया जा सकता. तो फिर जो
चेंज को लेके चलना है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स को साथ लेके चलना है। उन्हीं की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो जैसे काम चल रहा है चलने दो भाई, हम आदी हुए हैं, बस चलने दो। अगर कोई चेंज आएगी तो नेचुरली उसके साथ उनको सीखना पड़ेगा, वो नहीं उसमें इंटरेस्ट लेंगे। So leaders need to be aware of how change impacts on workers. ये अगर आप एक ग्राफ देखें तो इससे हमें सेल्फ एस्टीम और टाइम का ग्राफ है ये। तो सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? इमोबिलाइजेशन मींस एज रूमर्स ऑफ द चेंज सर्कुलेट द इंडिविजुअल फील्स सम सेंस ऑफ शॉक एंड पॉसिबल डिसबिलीफ, सो मच सो दैट दे डीम इट वर्दी ऑफ डूइंग नथिंग। जो मैंने अभी बात की कि वो नहीं चाहते कि कोई चेंज आए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो जो ही उनको ये खबर मिलती है, यानी इवन ये भी खबर मिले ना कि एक नई ऑटोमेटेड मशीन आ रही है, तो उनको मुसीबत पड़ जाती है कि भाई हमें सीखना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे रन करना है, इसमें क्या फंक्शंस हैं क्या नहीं है। तो वो उससे पहले ही कहते हैं कि बेहतर है कि ना ही करो कुछ यार, अब हो तो जाने, ये मुसीबत तो गले पड़नी है। तो ये जो ही र्यूमर आती है ये हालत हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है? मिनिमाइजेशन दूसरे स्टेप में, यानी एज द चेंज बिकम्स क्लियरर पीपल ट्राई टू फिट इन द चेंज विद देयर ओन पर्सनल पोजीशन एंड मे ट्राई टू बिलीव दैट इट विल नॉट अफेक्ट देम। तो अब ये बात हुई कि अब उनको जब कंफर्म हो गया, अब वो अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं कि भाई कोई ठीक है, अब ये चेंज आनी तो है, लेकिन इससे मुझे नहीं कोई खास फर्क पड़ेगा, मेरा जो काम जैसे है चलता रहेगा, आने तो चेंज जो आती है कोई बात नहीं। तो ये अब वो उस चीज को मिनिमाइज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? डिप्रेशन। सो एज रियलिटी बिगिंस टू डॉन स्टाफ मे फील एलिनेटेड एंड एंग्री, राइट? अब उनको ये रियलिटी मिलना शुरू हो गई कि नहीं जी चेंज तो अब आ ही गई है, right? So feelings of a lack of control of events overtake people and they feel depressed as they try to reconcile what is happening with their own personal situation. तो पहले तो उन्होंने तसल्ली दे दी ना कि भाई कुछ नहीं होता, हमारी जो पोजीशन है वो सही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है हमें। लेकिन जब वो आ गई तो अब वो डिप्रेस हो गए कि भाई अब हम क्या करें, ये तो मतलब एक नई चीज आ गई है, नया प्रोसेस आ गया है, तो अब ये तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, या तो हम सीखेंगे या हमारी फिर पोजीशन जो है वो कोई और टेक ओवर कर लेगा, जो पहले सीख लेगा, या कोई नया आ जाएगा। तो अब वो डिप्रेस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ में क्या आएगा? अब डिप्रेशन के बाद आप देखिए कि क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस। मतलब द लोएस्ट पॉइंट इन सेल्फ एस्टीम फाइनली सीज पीपल स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द इनएविटेबल। अब डिप्रेशन के बाद जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद उनकी एक्सेप्टेंस आ गई, राइट? तो हम ये कहते हैं कि द फियर ऑफ फ्यूचर इज अ फीचर ऑफ दिस स्टेज, यानी उनको ये खतरा भी तो है ना कि भाई अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इस चेंज के साथ नहीं चलेंगे, तो हम अपनी पोजीशन लूज कर देंगे, हमारी जगह पे कोई नया बंदा आ जाएगा, कोई टेक ओवर कर लेगा और हम रिडेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए फिर उनको ऑटोमेटिकली इस एक्सेप्टेंस को खुद अपने आप में लेके आना पड़ता है, राइट? तो ये जब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, अगर आप ग्राफ देख रहे हो, तो उसके बाद दोबारा से ये ग्राफ ऊपर जाना शुरू होता है, यानी एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है और लोग फिर इस चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या आता है लास्ट में? टेस्टिंग आउट। मतलब इंडिविजुअल्स बिगिन टू इंटरेक्ट विद द चेंज, दे स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस टू सी हाउ दे माइट वर्क विद द चेंज, राइट? अब एक्सेप्टेंस आ गई ना, तो उन्होंने उसको पूछना शुरू कर दिया कि हाँ भाई इस चेंज का क्या फायदा होगा, कैसे हम इस प्रोसेस को लेके चलेंगे, इसके क्या नुकसानात हैं, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, पिछले की निस्बत इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उन डिफरेंसेस के लिए कोई ट्रेनिंग कर लें, कोई सीख लें, किसी एक्सपर्ट आदमी से ओपिनियन ले लें, वगैरह वगैरह। तो अब ये टेस्ट अकाउंट की फेज आ गई। और फिर search for meaning, individuals begin to work with the change and see how they might be able to make the change work for them. So self-esteem begins to rise again. तो यहाँ पे ये दोबारा से हम ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गए। तो ये उसके मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिए चेंज आएगी, यानी चेंज आना शुरू होगी तो सेल्फ एस्टीम पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने उसको देखा पॉइंट वाइज कि क्या असर होगा। पहले तो वो कहेंगे जी कोई बात नहीं, फिर कहेंगे चलो हमारी पोजीशन को फर्क नहीं पड़ता,
फिर जब आ जाएगी चेंज तो फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। फिर उस डिप्रेशन के बाद वो वापस ऊपर आना शुरू होंगे कि भाई ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लो, और फिर मजीद ये कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर लो। तो इस तरह से ये चेंज के साथ सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट आता है। और फिर internalization, the change is understood and adopted with the individual's own understanding. They now know how to work with it and feel a renewed sense of confidence and self-esteem. ये जनाब यहाँ पे internalization पूरी हो गई यहाँ पे। ओके, तो ये चेंज को हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, इसको बहुत तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे इन आवर A2 सेशन। So next, the I hope last topic is the emotional intelligence. What is emotional intelligence? It's the ability to understand your emotions and your staff's emotions to ensure a better business performance. तो देखें दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, अपने अपने इमोशंस को भी समझना है, अपने स्टाफ के इमोशंस को भी समझना है, देन आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। So this is a very new area of research, but because business is a very people-oriented environment, the brightest person in the academic terms may not be the best at managing staff, whereas someone with a higher EQ, emotional quotient जिसको हम कहते हैं EQ, is likely to do a better job. तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में हम ये कहते हैं कि हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए कि सारे के सारे ए स्टार ही उसके आए हों, ठीक है। ए स्टार्स आने के बावजूद मे बी वो बिजनेस के टर्म में अच्छा साबित ना हो, कि वो स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो दोनों चीजें ना अपने इमोशंस को समझ पा रहा है ना अपने स्टाफ के इमोशंस को समझ पा रहा है, यानी उसका इमोशनल कोशेंट जो है वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से वो अच्छा मैनेजर साबित नहीं हो सकता, राइट। तो ये इस पे रिसर्च काफी ज्यादा की गई और इस पे बहुत काम किया गया इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो 4 इसमें मेन कॉम्पिटेंसीज जो हैं उन्होंने अनर्थ की कि ये कॉम्पिटेंसीज होना ज़रूरी है एक अच्छा इमोशनल कोशेंट रखने के लिए। ये 4 कॉम्पिटेंसीज क्या थी जी? नंबर 1 हम उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मीन्स knowing what we feel is important and using that to guide decision making, means having self confidence in our abilities. तो ये सेल्फ अवेयरनेस आ गई कि हमें पहले अपने का पता हो कि हम क्या हैं। सेल्फ अवेयरनेस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया खुदी का, राइट, और उन्होंने कहा जी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मीन्स क्या कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी खुदी इतनी ज्यादा हो कि मतलब इस हद तक इकबाल ने कह दिया कि खुदा भी पूछे कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी रजा क्या है, राइट। तो ये क्या है? अपने आप को जानना, ये पहली कॉम्पिटेंसी है कि अपने आप को जानोगे तो आगे कुछ कर सकोगे ना, अपने इमोशंस को समझोगे तो आगे कुछ कर सकते हो। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप खुश होते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी आ जाती है उसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, means you are being able to manage behavior despite whatever the situation is, कि आप क्विकली रिकवर कर लेते हो अपने आप को फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस, फ्रॉम स्ट्रेस, यू आर ट्रस्टवर्दी। तो आपने अपने आप को पहले मैनेज कर लिया। जब सेल्फ अवेयरनेस आ गई, सेल्फ मैनेजमेंट आ गई, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? अब सोशल अवेयरनेस आएगी, means reading people and taking their views into account, being able to relate to a wide range of individuals. तो अब आपने क्या किया? आपने लोगों को समझना शुरू कर दिया, उनके इमोशंस को समझना शुरू कर दिया कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं, किस बंदे को किस तरह से, कुछ लोगों को डांट के काम करवाया जा सकता है, कुछ को प्यार मोहब्बत से काम करवाया जा सकता है, कुछ लोग प्यार मोहब्बत का उल्टा मतलब लेते हैं, काम नहीं करते, कुछ लोग प्यार मोहब्बत का कहते हैं यार इतने अच्छे तरीके से मेरे सुपरवाइजर ने कहा है तो मैं अच्छा काम करके दिखाऊं, कुछ लोग डांट से मार से काम करते हैं। तो ये क्या है? अब आपने अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस हासिल करना शुरू कर दी। और फिर लास्ट कॉम्पिटेंसी आ जाती है जिसको हम कहते हैं सोशल स्किल्स,
सोशल स्किल्स में क्या है कि यू बिकम एबल टू यूज सोशल स्किल्स टू लीड एंड मोटिवेट स्टाफ एंड इंटरप्रेटिंग सोशल इंटरेक्शन करेक्टली। यानी आपने क्या किया कि आपने इमोशंस, रिलेशनशिप में इमोशंस को हैंडल करना शुरू कर दिया कि किस तरह से आप लोगों के इमोशंस को लेके चलोगे, अपने इमोशंस को लेके चलोगे और अच्छे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करोगे। ये आपके आगे सोशल स्किल्स। तो अब जिनमें ये 4 कॉम्पिटेंसीज होंगी, कहा यह जाता है कि इन 4 कॉम्पिटेंसीज की बेसिस पे मैनेजर्स जो हैं वो बड़े अच्छे परफॉर्म करेंगे और दे बिकम गुड मैनेजर, राइट। तो इसमें बहुत सी अटैम्प्ट्स इसमें मजीद रिसर्च की जा रही है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कितना रोल प्ले करती है। लेकिन अभी तक की रिसर्च यही कहती है कि जितना अच्छा इमोशनल कोशेंट होगा उतना मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। और अच्छी यानी अगर कोई सोशल ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसमें वो अच्छे इमोशनल कोशेंट वाला मैनेजर अच्छा परफॉर्म करेगा। और जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस कम है वो नेचुरली उसके ऊपर ट्रस्ट भी कम होगा, लोग उसकी बात भी कम सुनेंगे और प्रॉपरली वो चीज़ों को, स्टाफ को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये भी एक सक्सेसफुल मैनेजर्स और सक्सेसफुल लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो here we end up our today's discussion. After 5 minutes we have question and answer session.